نحمده ونصلي على رسول كريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ کل آپ مصباح کی کلاس میں یعنی 3 طرح کے حروف تہجی سیکھے تھے، جس میں بعض یعنی حروف ایسے ہوتے ہیں حروف تہجی کے جو ہم ہمیشہ باریک پڑھیں گے، اور بعض یعنی 7 ایسے حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور تیسری کیٹیگری جو الحمدللہ کل جو بھی مصباح کی کلاس اٹینڈ کیے تھے وہ جانتے ہیں کہ تیسری کیٹیگری وہ ہے جن میں 3 ایسے حرف آتے ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ کل مصباح نے اپنی کلاس میں شاید الف کے بارے میں آپ لوگوں کو خلاصہ کیا تھا، تو اگلی کلاس میں وہ لام کے بارے میں یعنی لام کب موٹا پڑھا جائے گا اور کب لام اسم جلالہ باریک پڑھا جائے گا اس کا خلاصہ کریں گے۔ لیکن یہ 2 بہت سمپل رولز تھے جو الف اور لام کے ہیں، یعنی ان کی زیادہ ڈیٹیلنگ اور زیادہ پوائنٹس نہیں ہیں، تو اس وجہ سے میں وہ ٹاپک کو نہیں ٹچ کروں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک مصباح آپ کو لیں گے۔ جو را جو ہے تیسری کیٹیگری جو میں را آتا ہے جو کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جائے گا، اس کی تھوڑی یعنی تفصیلات ہیں جو آج میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں گی، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے اس کا خلاصہ کروں گی پوائنٹ بائی پوائنٹ، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ میں نے اسکرین پر آپ لوگوں کو یعنی شیئر کر دیا ہے، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ایک ایک پوائنٹ کر کے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور میری ایک اور گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ جیسے جیسے آپ پوائنٹ سنتے جائیں گے کہیں پہ بھی آپ کو یعنی یہ محسوس نہ ہو یا یہ گھبراہٹ یا یہ خوف نہ ہو کہ ارے یہ رولز اتنے سارے ہیں تو ہم کیسے اس کو یاد رکھیں گے یا کیسے اس کو اپلائی کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ تو جیسے جیسے آپ یعنی سیکھتے جائیں گے، قرآن پڑھتے جائیں گے، تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ میں آتا رہے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی یہاں پر میں اور مصباح آپ کو کلاس کے درمیان PDF شیئر کریں گے اور اس پر یعنی آپ کو سکھائیں گے، وہ PDF یعنی ٹیلی گرام کا جو ہمارا گروپ ہے اس میں شیئر کر دیا جائے گا، اور آپ لوگ وہاں سے یعنی اس PDF کو اگر سیو کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں، یا پھر اگر آپ اس کے نوٹس بنانا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی، آپ اس کو کر سکتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ تو چلیں سب سے پہلے میں یہاں پر آپ کو 2 چیزیں بتاتی چلوں، ٹھیک ہے؟ را کے ایکچولی اگر دیکھیں تو 3 احکام ہیں، لیکن میں تیسرا جو احکام ہے وہ تھوڑا بہت زیادہ کیا بولتے ہیں، میں آپ لوگوں کو کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہتی اور زیادہ ڈیٹیلنگ میں نہیں جانا چاہتی، بس میں آپ کو یہاں پر 2 احکام جو بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں ہمیں سمجھنے کے لیے، اتنا کافی ہے۔ اگر ہم یہ 2 احکام بھی سمجھ کر قرآن پڑھتے وقت اپلائی کر کے پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہمیں بہت حد تک آسانی بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ سمجھ میں بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے یہاں پر جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، پہلا جو ہے وہ تفخیم ہے۔ تفخیم یعنی عربک لیٹر ہے، اسے عام زبان میں اگر ہم کہیں تو را کو کب ہم موٹا پڑھیں گے، یعنی تفخیم مانے موٹا پڑھنا، اور
दकीक माने बारीक पढ़ना, यानी किन वजूहात की बिना पर या किन असबाब के बिना पर, सबब की बिना पर, या मैं कहूँ क्या रीजन रहेगा जिसकी वजह से आप और मैं रॉ को कभी बारीक पढ़ेंगे और कभी मोटा पढ़ेंगे। इंशाल्लाह इसकी तफसील में आज हम इस क्लास में जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो तफखीम। तफखीम माने मुंदरजैल 12 यानी हालतों में रॉ पुर यानी मोटी होगी। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है आपको और मुझे कि रॉ की 12 ऐसी सूरतें हैं, सूरतें यानी लिटरली यानी चेहरा नहीं रॉ का, ठीक है, जैसे लिखावट में होता है, ये मैं बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि इसका मतलब ये है कि 12 ऐसे यानी सबब की वजह से रॉ को हम पुर पढ़ेंगे या मोटा पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर जो आता है वो है रॉ पर जबर हो। यानी अगर आप देखेंगे कुरान पढ़ते वक्त के रॉ पर अगर जबर आ रहा हो तो वहां पर आपको और मुझे रॉ को मोटा पढ़ना है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में अगर हम इसको लिखें RAW, ठीक है, ये मैं इसलिए एग्जाम्पल्स इस तरह के देती हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। जो भी यानी इंग्लिश जानते हैं समझते हैं तो वो इस बात को समझेंगे कि बचपन से हम यानी रॉ को जैसे पढ़ते थे, हमें ये मालूम ही नहीं था कि रॉ को कभी मोटा पढ़ा जाता है और कभी बारीक पढ़ा जाता है और इसकी वजह क्या है, ठीक है। हम हमेशा क्या करते थे, रॉ को रा 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 इसी तरह से हमेशा पढ़ देते थे, चाहे वहां पर रॉ के ऊपर जबर या पेश हो या रॉ के नीचे जेर हो, तो दोनों सूरत हाल में हम रॉ को एक ही तरह से पढ़ते थे। लेकिन आज हम इंशाल्लाह जानेंगे कि रॉ को कैसे पढ़ना है किस सूरत हाल में, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है वो ये है कि जब भी कुरान के अल्फाज में अगर आप रॉ पर जबर देखेंगे तो वहां पर आप रॉ को मोटा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल्स के जरिए से वो आपको और मुझे समझा रहे हैं, जैसा कि फरदो, फरो, रॉ को मोटा करना है, रा फरदा इस तरह से नहीं पढ़ना है, ठीक है। फरदो, रफसा, मरहन इस तरह से, मरो, मरो, मरो। यहाँ पे मीम बारीक है, रॉ मुखफ़्फ़म पढ़ा जाएगा या मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि रॉ के ऊपर जबर आ रही है, और हन यानी हा जो है वो बारीक हर्फ है, तो इसको किसी भी सूरत हाल में हम बारीक ही अदा करेंगे, इसको मोटा नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर पॉइंट हम यानी दूसरा पॉइंट देखें तो रॉ पर पेश हो, ठीक है, रॉ पर पेश हो, जैसे खैरुकुम, खैरुकुम, मकरू, मकरू, हाजरू, रू, रू। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊं कि जब भी आप यानी अल्हम्दुलिल्लाह मिसबा के जरिए से आप लोग मखारिजल हुरूफ से गुजर चुके हैं, यानी कौन से हर्फ का मखरज कहाँ से अदा होगा, उसका मखरज क्या है, आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या है, किस हर्फ को किस तरह से हम अदा करेंगे। लेकिन आपको ये बात याद रखनी होगी कि जब भी कोई हर्फ पर आपको पेश आए या वहां पर वऊ हो तो ये दो सूरतों में, वऊ आने की सूरत में और पेश आने की सूरत में, कोई भी हर्फ पर आप होठों को गोल करके पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉ पर पेश आ रही है, तो यहाँ पर आपको रॉ को मोटा करने के साथ साथ अपने होठों को गोल करके पढ़ना है। इस वजह से नहीं कि रॉ होठ गोल करके पढ़ा जाता है, बल्कि इस वजह से कि रॉ के ऊपर पेश है, ठीक है। खैरुकुम, खैरुकुम, मकरू, हाजरू, रू, रू इस तरह से आपको मोटा पढ़ना है जब आपको रॉ के ऊपर पेश या जबर आए, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हो गए। तीसरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो ये है कि रॉ मुशद्दद, मुशद्दद माने उर्दू में बहुत सारे लोग इसे तशदीद के नाम से जानते हैं, ठीक है। अरबिक में इसको मुशद्दद कहा जाता है, मुशद्दद माने उल्टा त्री है, जिसको उर्दू में हम तशदीद कहते हैं। जब भी रॉ मुशद्दद पर जबर हो, जैसे हर्रमल्लाहु, हर्रमल्लाहु,
सर्रफना सिर्रम व अलानिया, सिर्रम व अलानिया। इस तरह से जब भी आप देखेंगे कि रॉ के ऊपर आपको शद्दा आए या तशदीद आए या मुशद्दद कह लें इसको, तो आप वहां पर रॉ को मोटा करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका हुआ तीसरा पॉइंट। और आप याद रखेंगे यहाँ पर जो एग्जाम्पल तीसरा दिया गया है, सिर रौम रौम रौम, यहाँ पे आपको होठों को गोल करना है क्योंकि वहां पर वाउ मुशद्दद आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सूरतों में, पेश आने की सूरत में और वाउ आने की सूरत में, कहीं पर भी कुरान में किसी भी हर्फ पर पेश आए या वाउ आए तो वहां पर आप और मैं होंठ को गोल करके पढ़ेंगे। यानी ये पॉइंट इससे रिलेटेड नहीं है, जो आज टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ रॉ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जब भी किसी हर्फ का मखरज अदा करते हैं, समझिए जब मोटे हुरूफ आपको जो साथ हैं वो पढ़ेंगे, तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि होठों को गोल कर देते हैं ताकि वो मोटा कर सकें उस हर्फ को। लेकिन मुझे और आपको ये जानकर रखना है कि मोटे हर्फ जो भी पढ़े जाएंगे, खस्सा दोगतुन खिज, वहां पे होठ गोल नहीं होंगे, बल्कि उनके मखरज को सही से अगर आप अदा करोगे तो वहां पर आपका यानी वो मोटापा आएगा, वो लफ्ज वो हर्फ का, सॉरी। ठीक है, तो बस दो ही सूरतों में आपके होठ गोल करने हैं, वो है जब किसी हर्फ पर पेश आए या कहीं पर आपको कुरान में वाउ नजर आए। ठीक है, इसी पर होंठ गोल होंगे। तो ये बस एक बात थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। नेक्स्ट जो है फोर्थ पॉइंट, अगर आप देखें यहाँ पर रॉ मुशद्दद पर पेश हो। इससे पहले थर्ड पॉइंट पे आप क्या देखे थे, रॉ मुशद्दद पर जबर हो, तो आपको रॉ को मोटा पढ़ना है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, जब भी आपको कुरान में रॉ नजर आए जिस पर आप शद्दा या तशदीद देखोगे और उस पर उस तशदीद के ऊपर अगर पेश आए, तो वहां पर आपको और मुझे समझते हुए पढ़ना है कि हम रॉ को यहाँ पर मुखफ़्फ़म या मोटा पढ़ेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, यदुर्रुहुम, यदुर्रु, यदुर्रु, यदुर्रुहुम, मिर्रूहिना, मिर्रूहिना, शर्रुल्लहुम, शर्रुल्लहुम। इस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, पांचवा पॉइंट जो है, रॉ साकिन इससे पहले जबर हो, यानी आपको कोई भी अगर वर्ड आए, कोई भी ऐसा लफ्ज आए कुरान में जिस पर आप देखोगे कि रॉ के ऊपर सुकून है या जज़म है, आम उर्दू में इसको जज़म कहा जाता है और अराबिक में इसको साकिन या सुकून कहा जाता है। तो आप ऐसा लफ्ज देखोगे जिसमें रॉ के ऊपर जज़म है या सुकून है और उससे पहले वाला कोई भी हर्फ हो, चाहे वो अलिफ हो, ता हो, बा हो, कुछ भी हो, अगर रॉ साकिन से पहले वाले हर्फ पर आप जबर देखोगे तो इस सूरत हाल में भी आपको रॉ को मोटा पढ़ना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखें स्क्रीन पर, अरसला, अरने। अब मैं पढ़ते वक्त आपको आप देख सकते हो कि मैं रॉ को मोटा करके पढ़ रही हूँ। मैं इसे अरसला, अरसला इस तरह से नहीं पढ़ रही हूँ। अगर मैं ऐसे पढ़ूं तो वहां पर क्या होगा, बारीक हो जाएगा रॉ, जबकि रूल के हिसाब से क्या है, रॉ के ऊपर साकिन है या जज़म है और उससे पहले जो हमजा है, हमजा या अलिफ कह लें आप इसको, उस पर जबर है। तो कंडीशन वहां पे क्या हो गई, रॉ साकिन से पहले वाले हर्फ पर अगर आप जबर देखोगे तो रॉ को आप मोटा पढ़ोगे। कैसे पढ़ेंगे, अरसला,
अरसला, यहाँ पे सीन बारीक है, लाम बारीक है, तो रॉ को मोटा करने के चक्कर में आप और मैं सीन और लाम को मोटा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों से ये गलती होती है कुरान पढ़ते वक्त, मोटा हर्फ पढ़ने की कोशिश में उसके आगे और पीछे बारीक यानी हर्फ जो होते हैं उनको भी मोटा कर देते हैं। अब मैं इसको बताऊंगी कैसे कर देते हैं। अरसला, और सौ सौ हो गया तो सीन वहां पे क्या हो गया, मोटा हो गया। जबकि कैसे हमें पढ़ना है, सिर्फ रॉ को मोटा पढ़ना है, सीन और लाम बारीक हरूफ में आते हैं तो इनको हम बारीक ही अदा करेंगे और रॉ को मोटा करेंगे। अरसला, तरफउ, तर, तर, पहले ता को अदा कर देना है, उसके बाद रॉ को मोटा करना है। यहाँ पे भी तौर, तौर नहीं करना है। अगर आप ता को तौ पढ़ोगे तो तौ क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, मोटा हर्फ है तौ, ठीक है। तो वहां पे आपको पहले रॉ की तरफ देखना ही नहीं है, यानी कभी भी जब मोटा हर्फ आए तो हमें मोटे हर्फ के पहले जो बारीक हर्फ होता है इत्मीनान से हम उसको अदा कर लेंगे, फिर हम उसके बाद मोटे हर्फ की तरफ आकर उसको मोटा करेंगे। तरफउ, तरफउ, इस तरह से, ठीक है। तर, तर, मैं तौर तौर नहीं कह रही हूँ। तो ये गौर तलब बात है, जो गलती हमें नहीं करनी है। नेक्स्ट जो है मरजिउ, मर, मर, म, मीम को अदा कर दिए, ऊपर का होंठ नीचे के सूखे होंठ से मिलकर मीम अदा हो जाएगा, फिर उसके बाद हम रॉ को मोटा करते हुए आएंगे। मरजिउ, मरजिउ, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट जो है 6वां पॉइंट स्क्रीन पर, रॉ साकिन इससे पहले पेश हो, यानी रॉ के ऊपर जज्म या साकिन है, इससे पहले पेश हो। जैसे तुरजाऊना, तुरजाऊना, मुरसलूना, मुरसलूना, तुरहमूना, तुरहमूना, इस तरह से। ताकि ऊपर जज्म है, उससे पहले वाले हर्फ पर अगर आप देखें तो पेश है, तो ये सूरत हाल में वहां पर आपको रॉ को मोटा पढ़ना है। तुर, तुरजऊना इस तरह से नहीं होगा, तुर, तुर, मुर, तुर, इस तरह से, ठीक है। रॉ को मोटा करके पढ़ना है। अच्छा, ये जो है ये प्रैक्टिस करते करते ही आएगा, एकदम से जबान पर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि बचपन से जो हम सीखते आए हैं वही हमारी जबानों पर चढ़ा हुआ होगा, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, यानी जो हमारे जहनों में बचपन से एक जो बैठा हुआ है, ये हमारी जबान से हटकर एक नई प्रैक्टिस करने से ही हमें यानी ये सब चीजों की आदत बनेगी, ठीक है। तो बार 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 प्रैक्टिस करते रहना, किसी क़ारी की क़िरात को सुनते रहना और उसको रिपीट करते रहना, तभी ये चीजें इंशाल्लाह हमें आदी होंगी। यानी एक होता है इल्म को सीख लेना, दूसरा जो होता है वो इल्म को अप्लाई करना, अपनी जिंदगी में अमल करना। तो सीखने से ज्यादा बहुत जरूरी क्या होता है, अमल में लेकर आना उस चीज को, ठीक है। तो एकदम से नहीं आएगा, कोशिश करते करते प्रैक्टिस करते हुए आ जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो 7वां पॉइंट है, रॉ साकिन इससे पहले जेर आरजी हो। यहाँ पर गौर करें ये पॉइंट को, मैं आपको यानी इसको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगी। आरजी किसको कहते हैं, जो उर्दू यानी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वो ये बात को समझ सकते हैं कि आरजी माने टेम्पररी। टेम्पररी ऐसी चीज यानी जो वक्ती तौर पर वहां पे इस्तेमाल हुई है, वो नहीं थी वहां पे, लेकिन जरूरत के तहत वक्ती तौर पर वहां पे वो चीज यानी डाली गई या इस्तेमाल की गई आरजी तौर पर, टेम्पररी तौर पर, तो इसको आरजी कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि रॉ साकिन इससे पहले जेर आरजी हो, यानी अगर आप एग्जाम्पल में देखेंगे, और ये जो यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल दिया गया है,
इरजिई, यहाँ पर आप देखोगे मुसहफ में, अगर आप कुरान में देखेंगे तो ये लफ्ज जो है इरजिई, ये सूरतुल फज्र में आता है, आखिरी आखिरी आयतों में, ठीक है। तो यहाँ पर बाज मुसहफ में आप देखेंगे कि ये जो अलिफ यहाँ पर है, ये अलिफ के नीचे आपको जेर लगी हुई नहीं होगी, जेर लगी हुई नहीं होगी। और बाज मुसहफ में इंडिया और पाकिस्तान के अगर आप देखें तो यहाँ पर जेर लगी हुई होगी। बाज में जो उस्मानी मुसहफ हैं उसमें नहीं होगी, इंडिया और पाकिस्तान के मुसहफ में वहां पर जेर लगी हुई होगी। ये इसलिए कि आपको और मुझे कंफ्यूज ना हो, पढ़ने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये एक्चुअली थर्ड लेटर रूल है जो इंशाल्लाह मैं अब आपको सिखाकर कंफ्यूज नहीं करूंगी। आगे की क्लासेस में अगर मौका, इसको जरूर आप लोगों के सामने ये थर्ड लेटर रूल क्या होता है इसका मैं जरूर खुलासा करूंगी जब मैं हमजतुल वस्ल को लूंगी। अभी सिर्फ आप इतना जान लें कि जब भी आपको यानी कुरान में ऐसे अल्फाज आए जहां पर अलिफ के नीचे कुछ भी नहीं होगा, कोई हरकत नहीं होगी जबर या जेर या पेश की, और उसके बाद आप देखोगे कि रॉ साकिन है, तो वहां पर आप क्या करोगे, जेर लगाओगे और इसको आप रॉ को मोटा करके पढ़ोगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रॉ साकिन से पहले जेर है। अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर हमें रॉ को बारीक पढ़ना होता है, जो आगे अब मैं आप लोगों को समझाऊंगी क्यों करके। लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शनल रूल है, यानी कुरान में बाज ऐसे रूल्स होते हैं, बाज ऐसे अल्फाज होते हैं जिनमें एक्सेप्शन होती है, जिसकी वजह से हम वहां पर इनको बारीक नहीं पढ़ेंगे बल्कि रॉ को मोटा पढ़ेंगे। और ये एक्सेप्शन क्या हुई कि आप यहाँ पर यानी जेर जो लगी हुई दिख रही है एग्जाम्पल में, वो एक्चुअली आकर यानी कुरान में नेचुरल तौर पर जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उतारा था तो यहाँ पर जेर नहीं थी, बल्कि ये पढ़ने में आसानी करने के लिए, रूल्स के हिसाब से समझने के लिए यहाँ पर आरजी जेर दिया गया। इसका भी एक सबब है इंशाल्लाह जो मैं खुलासा करूंगी। अब मैं यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ऐसे नहीं उतारा, उसका मतलब ये नहीं कि कोई उलमा या आम इंसान यहाँ पे अपने हिसाब से जेर या जबर दे लिए, बल्कि ये अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान को नुज़ूल किया तो अल्लाह ने ये तजवीद के रूल्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाए थे कि किस तरह कुरान को पढ़ना है, कहाँ पे कौन सा हर्फ मोटा पढ़ा जाएगा, वहां पर वो क्यों मोटा होगा, उसका सबब क्या है, ये तमाम अल्लाह से ही यानी हम तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से या सहाबा के जरिए से पहुंचा है। कोई भी चीज कुरान में हम अपने हिसाब से नहीं पढ़ सकते या उलमा अपने हिसाब से ऐड नहीं कर सकते, बल्कि ये सिलसिला जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चला आया है, उसी हिसाब से आप तक और मुझ तक ये पहुंचा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबब क्या है कि हम वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर, टेम्पररी तौर पर अलिफ को हम यहाँ पे जेर देंगे, क्योंकि टेम्पररी तौर पर यहाँ पे अलिफ को जेर दिया गया, इस वजह से यहाँ पर रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे। इंशाल्लाह जब मैं मुसहफ यानी आप लोगों को तो इसको हम पढ़ाएंगे, जब मैं और मिसबा यानी सुनेंगे वेडनेसडे की क्लास में आप लोगों से तिलावत, तो ऐसी बाज जगह पे ये ऐसे अल्फाज आएंगे तो हम आपको वहां पे क्लियरिटी देंगे कि यहाँ पे रॉ को मोटा पढ़ना है। बस आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स को देखें और इसको ख्याल में रखें, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इंशाल्लाह यहाँ पे जो है रॉ साकिन इससे पहले जेर दूसरे कलीमे में हो, यानी आप स्क्रीन पर देखोगे कि रॉ साकिन आ रहा है, एक वर्ड है, एक लफ्ज है जिसमें आपको रॉ साकिन आ रहा है, लेकिन उससे पहले आप देखोगे कि अलिफ जो है वो खाली लिखा हुआ है, इस पर कोई जेर जबर या पेश नहीं है। लेकिन अलिफ से पहले अगर आप एग्जाम्पल में देखें, मनिर मनिर दो, ठीक है, सॉरी मैं पढ़ने में थोड़ा गलत की थी, मनिर दो
दो, ठीक है। मनिर, 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 मैं रॉ को मोटा की। क्यों मोटा की? क्योंकि आप देखें वहां पे कि नून के नीचे जेर दी गई है, ठीक है। नून के नीचे जेर दी गई है। रॉ साकिन इससे पहले जेर दूसरे कलीमे में हो, यानी दूसरे कलीमे में माने यहाँ पर जो आप देखोगे मिन एक कलीमा है, एक एक वर्ड है मिन। मिन माने इसको उर्दू में इसका तर्जुमा होगा से, ठीक है। मिन का तर्जुमा होगा से, या यहाँ पे जो दिया गया है मन जो है, ठीक है। मन, मिन, इस तरह के इसके अलग माने होते हैं और ये एक अलग वर्ड है। मनिर तदो, तदो, मनिर तदो, इस तरह से। तो मन या मिन ये जो भी हैं इनको हुरूफे जारा या प्रेपोजिशन कहा जाता है, जो एक्चुअली यानी इन मिन को, इसका मिन माने से, मन माने जो, ठीक है, इसका उर्दू में माना है। तो चूंकि यहाँ पर अलग कलीमे में जेर आ रही है, इस वजह से हम यहाँ पर रॉ साकिन। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल जो दिया गया है, इनिर, तब तुम, इनिर, इनिर, मैं यहाँ पे इनिर, इनिर तब तुम नहीं पढ़ूंगी। अगर मैं यहाँ पे इनिर करके पढ़ूंगी तो क्या हो जाएगा, रॉ बारीक हो। तब तुम, तब तुम, इनिर, तब तुम, सॉरी बीच में कॉल आ गई थी मेरी इसीलिए आवाज चली गई थी। उम्मीद है कि अभी आ रही है मेरी आवाज। इनिर तब तुम, इनिर तब तुम। यहाँ पे भी आप देखें इन जो है, ये इन के, तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें तो पहले कलीमा जो इन है इसके नीचे आरिद कसरा है, तो इस वजह से यहाँ पे रॉ साकिन को हम मोटा पढ़ेंगे, इनिर तब तुम, ठीक है, इस तरह से। हाँ, आवाज ब्रेक हो जाती है, वो बाज दफा कॉल आ जाती है ना मुझे, इसलिए। नेक्स्ट जो है अमीर, ताबू, अमीर, 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 मैं यहाँ पे अमीर, अमीर, अमीर इस तरह से नहीं पढ़ी, अमीर ताबू, इस तरह से रॉ को मोटा करके पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह। नाइन्थ पॉइंट जो है, रॉ साकिन इससे पहले जेर और इसके बाद हुरूफे मुस्तालिया में से कोई हर्फ इसी कलीमे में हो, जैसे, अच्छा पहले मैं इसको पॉइंट को एक्सप्लेन कर लूं। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हो कि रॉ के ऊपर जज्म या साकिन है, ठीक है। लेकिन उससे पहले वाला जो हर्फ है, खौफ है या मीम है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जेर है। तो इस हिसाब से तो रॉ को बारीक पढ़ना था, लेकिन रॉ साकिन के बाद अगर आप देखें तो वहां पे हेवी लेटर्स या मुखफ़्फ़म लेटर्स या मोटे लेटर्स, कल जो मिसबा आपको सिखाए थे 7 ऐसे हैं करके, तो वो आ रहे हैं। जैसे तो मोटा लेटर है, सौद मोटा लेटर है, ठीक है, कौफ मोटा लेटर है। तो रॉ साकिन के बाद अगर आप देखोगे तो मोटा लेटर आने की वजह से यहाँ पे रॉ को हम बारीक नहीं पढ़ेंगे बल्कि यहाँ पर मोटा पढ़ेंगे। ये थोड़ी चीजें ना थोड़ा आपको अब लगेंगी कि कॉम्प्लिकेटेड है, अरे कैसे याद रखेंगे, इतनी बारीकियां हैं इस चीज में। अल्लाह के वास्ते परेशान ना हो जाएं। बस ये आप पहली बार शायद अगर सुन रहे हैं आप में से बाज लोग, तो आपको ये नया लगने की वजह से मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोग इसके आदी होते जाओगे, समझते जाओगे, इंशाल्लाह ये आसानी हो जाएगी। और दूसरी बात मेरी आप लोगों से दिली रिक्वेस्ट है, वो मेरी क्लास हो या किसी और की भी क्लास हो, जब भी क्लास खत्म होने के बाद आपको पीडीएफ या नोट्स शेयर किए जाएं, तो आप कोशिश करें इंशाल्लाह कि आप उसको 1 या 2 बार पढ़ लें, ताकि जो ताजगी तौर पर जो आपको यानी जहनों में क्लास सुनकर
यानी चढ़ा हुआ है ना, अगर आप पॉइंट्स को एक या दो बार रिपीट करोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो यूट्यूब पे आपको ऑडियो भी मिल जाएगी, जिसको आप एक बार दोबारा से सुनेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना है, और अगर कोई डाउट भी रहा तो आप बिला झिझक मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, या रिपीट क्लास भी चाहते हैं तो आप मुझे बता दें, मैं फिर दोबारा से इंशाल्लाह रिपीट करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो नौवां पॉइंट था, वहां पर आपको क्या कहा गया कि रॉक के ऊपर साकिन या जज़म है, उससे पहले वाले हर्फ पर आप जेर देख रहे हो एग्जाम्पल में, लेकिन लेकिन रॉ साकिन के बाद अगर आप देखोगे तो मोटा हर्फ आ रहा है। तो मोटा हर्फ आने की वजह से हम यहाँ पर रॉ को बारीक नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मोटा हर्फ आने की वजह से रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे। कैसे? खैर तोसू, खैर तोसू, मिर, मिर, यहाँ पे हम मिर 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 नहीं पढ़ेंगे, जैसा इंग्लिश का MIR है। ठीक है, इस तरह से नहीं पढ़ना है। मिर सौद, मिर सौद या मिर सौद। ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे। इर सौद, फिर 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 कह, फिर कह, यहाँ पे हम फिर कह इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा जबान में इस तरह की यानी मोटापन लाकर रॉ को अदा करना है। 11वां पॉइंट यानी सॉरी 10वां पॉइंट जो है, रॉ साकिन, इससे पहले हर साकिन और इससे पहले जबर हो। यानी क्या कहा जा रहा है आपको और मुझे, एग्जाम्पल पर तवज्जा करें। आप देख रहे हो कि रॉ के ऊपर साकिन या जज़म है, उससे पहले वाले हर्फ को भी आप देखो, वहां पे भी आपको साकिन मिलेगा, लेकिन उससे पहले वाला हर्फ जो कौफ है वहां पर आप देख रहे हो कि जबर है। तो इस सूरत हाल में भी आपको रॉ को मोटा पढ़ना होगा। अब इसकी सिंपल सी एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो वल अस्र, वल अस्र। ठीक है, सूरतुल अस्र जो आप पढ़ते हैं, अम्मा पारा का एक छोटा सूरा है, उसकी जो शुरुआत आप करते हैं तो वहां पे आपको वल अस्र, अस्र ऐसा नहीं पढ़ना है, बल्कि कैसे पढ़ना है? अल कद्र, अल कद, कद कद कलकला है, अल कद्र वल अस्र वस्सब्र, वस्सब्र इस तरह से पढ़ना है। ठीक है, रॉ को मोटा करेंगे। नेक्स्ट जो 11वां पॉइंट है, रॉ साकिन, इससे पहले हर्फ साकिन और इससे पहले पेश हो। ये दोनों सिमिलर पॉइंट हैं, बस फर्क क्या है, दो साकिन वाले हरूफ यानी रॉ पर भी साकिन है, उससे पहले वाले हर्फ पर भी साकिन है, उससे पहले वाले हर्फ पर अगर जबर या पेश आए तो दोनों सूरतों में हम रॉ को क्या करेंगे? मोटा करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? असुदूर, इस तरह से, असुदूर, अल कुबूर, अन्नाकूर, इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, मोटा करके पढ़ना है। वजह क्या है? रॉ साकिन है, उससे पहले वाले हर्फ पर भी साकिन है, उससे पहले वाले हर्फ पर जबर या पेश आए तो दोनों सूरतों में आपको रॉ को मोटा पढ़ना है। नेक्स्ट जो है, अच्छा यहाँ पे ये दो सूरतें सिचुएशंस कब आएंगी? हालत वक्फ में आएंगी, यानी स्टॉपिंग पर आएंगी। दो साकिन वाले हर्फ जब आप वहां पर आयत का एंड हो रहा है या कोई ऐसा कुरान में निशान है जहां पर आपको रोकना है, या फिर समझिए आपकी सांस वहां पर टूट गई, तो उसी सूरत हाल में दो साकिन मिलकर आएंगे। अब जैसे मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वल अस्र, यहाँ पे आपकी आयत खत्म हो जाती है, यानी कसम है जमाने की करके अल्लाह स्टॉप कर रहे हैं, आयत नंबर 1 करके दिया गया है, वहां पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पे स्टॉप करने की सूरत में हम क्या करेंगे? रॉ को साकिन करेंगे। लेकिन अगर आप मुसफ उठाकर चेक करोगे तो वहां पे वल अस्र नहीं रहेगा, बल्कि वल अस्र
री रहेगा, रॉ के नीचे जेर है, ठीक है। स्टॉप करने की सूरत में आप और मैं इसको रॉ को साकिन दे रहे हैं या जजम दे रहे हैं। तो जजम देने की सूरत में आप क्या करोगे, वहां पे रॉ को मोटा करोगे, क्योंकि रॉ से पहले साकिन वाला हर्फ है, उससे पहले जबर वाला या पेश वाला हर्फ आ रहा है। 12th पॉइंट जो है, रॉ मुरामा मदमूमा यानी पेश वाली रॉ पर जब रोम के साथ वक्फ किया जाए। अच्छा, मैं इसको नहीं पढ़ूंगी आप लोगों के सामने, यानी ये अर रोम, इश्माम और रोम ये अलग क्लास में आप लोगों को मैं समझाऊंगी, यानी ये क्या है करके। इश्माम एक रूल आता है तजवीद का, और रोम भी एक रूल आता है तजवीद का, जो कि आप लोगों को मैं अब इसका 12th पॉइंट का खुलासा नहीं करूंगी, ये रहने दें आप। जब मैं वक्त के रूल्स आप लोगों को सिखाऊंगी तो इंशाल्लाह आपको इस बात का भी खुलासा करूंगी, ठीक है। अच्छा चलें, यहां तक हमारा जो भी रॉ को मोटे पढ़े जाने वाला, यानी रॉ कब मोटा पढ़ा जाएगा, ये तमाम 12 पॉइंट्स में समझाया गया। अब जो मैं आपके सामने रखूंगी वो है रॉ को कैसे हम बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, तरकीक माने बारीक, तो 7 हालतें ऐसी होंगी जहां पर हम रॉ को बारीक पढ़ेंगे, यानी 7 सिचुएशंस ऐसे होंगे जहां पर हम रॉ को बारीक पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, रॉ के नीचे जेर हो, जैसे रिज़्क़न, तजरी, रिज़्क़न, यहाँ पे मैं रिज़्क़न नहीं बोली आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रॉ के नीचे जेर आ रही तो है, तो अंडरस्टूड है, यहाँ पे रॉ को हम बारीक अदा करेंगे। नेक्स्ट जो है, रॉ मुशद्दद के नीचे जेर हो, यानी रॉ के ऊपर तो आपको शद्दा या तशदीद मिलेगी, लेकिन इसके नीचे जेर मिलेगी, तो इस सूरत हाल में भी आपको रॉ को बारीक ही पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे, शर्री दुर्रियुन बिल हुर्री, हुर्री 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 हुर्री, इस तरह से मोटा नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट जो है, रॉ साकिन इससे पहले जेर हो, जैसे रॉ के ऊपर जजम या साकिन है, उससे पहले वाला लेटर जो है वो जेर जेर है। जैसे यहाँ पे आप देखें, शिर की कुम, शिर की कुम, यहाँ पे मैं शिर शिर की कुम इस तरह से नहीं पढ़ूंगी। अगर मैं ऐसे पढ़ूं तो रॉ मोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मोटा नहीं करना है, क्योंकि रॉ के नीचे शद्दा होने के बावजूद रॉ के ऊपर इसके नीचे जेर आ रही है, तो हम इसको बारीक अदा करेंगे। शर्री दुर्रियुन, दुर्रियुन बिलहुर्री, बिलहुर्री, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है, रॉ साकिन इससे पहले जेर हो, यानी रॉ साकिन आ रहा है और इसके नीचे जेर आ रही है, जैसे शिर की कुम, शिर की कुम, शिर आतुन, शिर आतुन, इस तरह से। यानी रॉ के ऊपर साकिन देखोगे, उसके पहले आप जेर देखोगे। ये तीसरा पॉइंट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें एक वजाहत यानी एक एक्सप्लेनेशन या एक खुलासा वो लोग आप दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं, आपको और मुझे, यानी थर्ड पॉइंट जो है उसमें भी उसका और यानी खुलासा है। कैसे है, मगर इस रॉ के बारीक होने की 3 शराइत हैं, यानी रॉ के ऊपर जज्म आ रहा है और उससे पहले जो लेटर है, जो हर्फ है, उसके नीचे जेर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि इसके भी 3 शुरूत हैं कि कब रॉ को हम बारीक पढ़ेंगे। जेर असली हो, ये क्यों कहा गया कि जेर असली हो, इससे पहले जब मैं आपको मोटा पढ़े जाने वाले रॉ में बता रही थी, तो मैं आपको बताई कि आमिर, आमिर ताबू, इरजिई, इस तरह से आरिद यानी टेम्पररी जेर लगाया जाता है। अब टेम्पररी जेर लगाया गया तो वो असली जेर नहीं हुआ,
ٹھیک ہے, اصلی زیر نہیں ہوا. اب یہاں پہ جو ہے وہ کنڈیشن کیا کہہ رہے ہیں کہ اصلی زیر ہو. اصلی زیر کا مطلب یعنی قرآن میں مصحف جب آپ کھولو گے تو آپ دیکھو گے کہ وہاں پہ آلریڈی زیر یعنی را ساکن سے پہلے زیر لکھا ہوا ہوگا. آپ کو وہاں پہ یعنی رول کے کسی اور رول کے حساب سے زیر لگانا نہیں پڑے گا, بلکہ آپ کو ویسی ہی کنڈیشن میں قرآن کو دیکھنے کو ملے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اصلی زیر ہوا. اور آپ کو وہاں پر اگر را ساکن سے پہلے اصلی زیر نظر آئے, اب سوال یہ ہوگا آپ کا ذہن میں ضرور آئے گا, میرے بھی ذہن میں اب آ رہی ہے یہ بات, تو میں خلاصہ کرتی چلوں کہ ہم کیسے سمجھیں گے کہ وہاں پہ اصلی زیر ہے یا نقلی زیر ہے. چلے اس طرح سے کہتے ہیں, یہ نہیں کہ ٹیمپرری یا عارضی زیر ہے. تو میں بتائی آپ کو کہ کچھ رولز ہوتے ہیں, کچھ اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم اس کو سمجھیں گے آگے انشاءاللہ جب میں آپ کو حمزۃ الوصل پڑھاؤں گی. ٹھیک ہے, اب یہاں پر بس اتنا یاد رکھیں کہ جہاں پر بھی آپ کو یہ ارجعی, ارکم معنا یا امیر طابو تابو اس طرح کے الفاظ نہیں آئیں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی الفاظ آپ کو ملیں گے انشاءاللہ وہاں پہ آلریڈی زیر رہے گی, جو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اصلی زیر ہے. اس کا ڈیٹیل خلاصہ انشاءاللہ آگے کی کلاسز میں کروں گی. ٹھیک ہے, نیکسٹ جو ہے زیر اسی کلیمے میں ہو. کنڈیشن کیا کی گئی, زیر اسی کلیمے میں ہو. یہ بھی میں کیوں بتا رہی ہوں آپ کو, میں جو لاسٹ آپ پڑھے یعنی اس سے پہلے جو میں خلاصہ کی آپ کو, یہاں پر آپ دیکھیں آیت 8 پوائنٹ میں میں کیا بتائی, را ساکن اس سے پہلے زیر دوسرے کلیمے میں ہو. دوسرے کلیمے میں اگر زیر ہو تو وہاں پر را کو موٹا پڑیں گے. لیکن یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, شرط کیا ہے کہ زیر اسی کلیمے میں ہو, یعنی دوسرا اس سے پہلے کا کلمہ نہ ہو. یعنی ورڈ, کلمہ مانے ورڈ, ایک الگ ورڈ کے نیچے زیر نہ ہو, بلکہ ایک ہی ورڈ ہو, ایک ہی ورڈ میں را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو, تو وہاں پہ آپ را کو باریک پڑھیں گے. اور لاسٹ تھرڈ پوائنٹ اس میں کیا دیا گیا, را کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمے میں نہ ہو. یعنی اس سے پہلے یہاں اوپر اسی اسکرین جو میں شیئر کر کے ہوں اس پہ اوپر فرسٹ پوائنٹ یعنی 10th پوائنٹ سے پہلے جو ایگزامپل میں آپ کو بتائی, میں کیا فرمائی آپ کو کہ را ساکن کے بعد اگر کوئی موٹا حرف آئے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ آپ را کے پہلے آنے والے زیر کو نہیں بلکہ اس کے بعد آنے والے موٹے حرف کو دیکھ کر را کو موٹا پڑھیں گے. لیکن اس کا اپوزٹ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے, را کے بعد حرف مستعلیہ اسی کلیمے میں نہ ہو. ٹھیک ہے, اسی کلیمے میں نہ ہو. یعنی اب یہاں اوپر اگر آپ دیکھیں خرطاس, مرصاد, ایک ہی کلمہ ہے, ایک ہی ورڈ ہے جس میں را ساکن کے بعد آپ کو موٹا حرف آ رہا ہے. اب یہاں پہ کنڈیشن کیا کی گئی ہے, ایک ہی کلیمے میں نہ ہو, یعنی ایک ورڈ میں را ساکن کے بعد موٹا حرف نہیں آ رہا ہے بلکہ اس کے بعد ایک آنے والے ورڈ کے اوپر یعنی موٹا حرف آئے وہاں پہ, تو کوئی بات نہیں, آپ کو را کو باریک ہی پڑھنا ہے. ایگزامپل دیکھیں نیچے یہاں پہ, اصلی کی مثال فرعون, فرعون, تو یہ فرعون جو ہے قرآن میں یہاں پر فا ہے, فا کے نیچے زیر ہے, اس کے بعد را ساکن آ رہا ہے, تو یہ اصلی ہے, اصلی زیر ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر آپ کو اسے را کو باریک ہی پڑھنا ہے. پھر اس کو ہم پھر اس طرح سے نہیں پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے اصلی زیر آ رہی ہے, تو ایک ہی کلیمے میں, تو یہاں پہ ہم را کو باریک پڑھیں گے. سیکنڈ پوائنٹ وہ کیا بتائے, زیر اسی کلیمے میں ہو, یعنی ایک کلیمے کی مثال فانذر, فانذر, ایک ورڈ ہے, ایک ورڈ میں را ساکن سے پہلے والا حرف زیر ہے, ایک ہی ورڈ میں, تو یہاں پر ہم را کو کیا کریں گے, باریک ادا کریں گے. اوکے, اب تھرڈ پوائنٹ جو ہے
ایک کلیمے کی مثال مرصاد، یہاں پہ میں کیا بتائی، اگر ایک کلیمے میں را ساکن سے پہلے تو زیر آ رہی ہے میم پر، لیکن اس کے بعد را کے بعد موٹا حرف آ رہا ہے تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. لیکن یہاں پہ کنڈیشن کیا دیکھیے آپ، دوسرے کلیمے کی مثال فصبر صبرن، یہاں پہ فصبر جو ہے پس صبر کرو، صبرن صبر، دو الگ ورڈز ہو گئے. فصبر صبرن جمیلا، یعنی جو یعقوب علیہ السلام کا ذکر جب ہوتا ہے قرآن میں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو سورۃ الیوسف میں، تو وہاں پہ پس صبر کرو صبرن جمیلا یعنی خوبصورت صبر کہا گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر فصبر جو ہے وہ ایک ورڈ ہے، صبرن دوسرا ورڈ ہے. را ساکن پہلے ورڈ کے اینڈ میں آ رہا ہے، لیکن دوسرے ورڈ کے سٹارٹ میں جو ہے صاد آ رہا ہے. تو یہ صورتحال میں آپ کیا کرو گے، را ساکن کے بعد موٹا حرف آ رہا ہے کر کے را کو موٹا نہیں پڑھو گے، وہ الگ کلیمے میں آ رہا ہے، تو وہاں پہ را کو آپ باریک ہی پڑھو گے. کیسے پڑھو گے، فصبر بر، بر نہیں پڑھو گے، فصبر صبرن. ٹھیک ہے، اس طرح سے. نیکسٹ جو ہے، مذکورہ ان شرائط میں سے اگر کوئی شرط بھی ٹوٹ جائے تو را موٹی پر پڑھی جائے گی. یہ چلیں اس کے ڈیٹیلنگ میں نہ جائیں، بس یہ آپ جو میں پوائنٹس بتائی اگر اس کو سمجھ لیں کافی ہے. فورتھ پوائنٹ جو ہے، را ساکن اس سے پہلے حرف ساکن اور اس سے پہلے زیر ہو. یہاں پہ کمپیریزن آپ کیسے کرو گے، را ساکن اس سے پہلے والا حرف ساکن، اس سے پہلے والا حرف پر اگر زبر یا پیش ہو تو وہاں پہ را کو موٹا پڑھیں گے. لیکن یہاں پہ کیا ہے، را ساکن اس سے پہلے والا حرف ساکن اور اس سے پہلے والا حرف اگر زیر ہو تو وہاں پہ را کو ہم کیا کریں گے، باریک پڑھیں گے. ہجر، ہجر، اس کو میں ہجر، ہجر اس طرح سے نہیں پڑھوں گی، کیونکہ را ساکن سے پہلے جیم ساکن ہے، جیم ساکن سے پہلے ہا ساکن میں زیر ہے، تو زیر آنے کی وجہ سے میں یہاں پہ را کو کیا کروں گی، باریک پڑھوں گی، ترقیق پڑھوں گی، تفخیم نہیں پڑھوں گی. ہجر، بہس، بہس سحر، سحر، میں یہاں پہ سحر، سحر اس طرح سے نہیں پڑھوں گی کیونکہ را کو موٹا کر دیا میں نے. یہاں پہ چونکہ را ساکن ہا ساکن اس سے پہلے سین پر زیر ہے تو میں یہاں پہ را کو باریک ہی پڑھوں گی. نیکسٹ جو ہے الذکر، 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 یہاں پہ بھی میں را کو باریک پڑھوں گی، لیکن یہ صورتحال وقت کی صورت میں ہی آئیں گے. ففتھ پوائنٹ جو ہے، را ساکن اس سے پہلے یا ساکن ہو، را ساکن اس سے پہلے یا ساکن ہو. یہ پوائنٹ آپ بہت بہت غور سے سنیں گے، یہ پوائنٹ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. را ساکن اس سے پہلے یا ساکن ہو، جیسے خیر، یسیر، یسیر. یعنی آپ قرآن میں اگر دیکھو گے کہ را ساکن آ رہا ہے کسی ورڈ میں یا کسی لفظ میں یا کسی کلیمے میں، تینوں سیم ہے، تو جب بھی را ساکن آئے اور اس سے پہلے یا ساکن آ گیا تو وہاں پہ کسی بھی صورتحال میں را کو باریک ہی پڑھنا ہے. آپ اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو جائے اس کو ہمیں دیکھنا ہی نہیں ہے. را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن آ گیا تو سمجھ جائیں وہاں پہ آپ کو ہمیشہ را کو باریک ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اب کیونکہ میں یہ ایک بات کیوں کہہ رہی ہوں، یہاں پہ آپ دیکھیں تینوں ایگزامپلز جو دیے گئے ہیں اس پر خا کے اوپر زبر ہے، یا کے اوپر زبر ہے، پھر یا کے اوپر زبر ہے. تو کنڈیشن کیا تھی، را ساکن یا را ساکن اس سے پہلے والا حرف ساکن اور اس سے پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو تو ہم را کو موٹا پڑھیں گے. لیکن یہاں پہ یہ ایکسیپشن کیس ہے، را ساکن سے پہلے یا ساکن آ گیا تو سمجھ جائیں وہاں پہ بات ختم ہو گئی. آپ کو را کو ساکن ہی پڑھنا، یعنی سوری را کو باریک ہی پڑھنا ہے، بھلے ہی اس سے پہلے والے لیٹر پر پیش آئے، زیر آئے، زبر آئے، یہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. کنڈیشن یہاں پہ بس یہی ہے کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن آ گیا تو را کو ہم باریک ادا کریں گے. ٹھیک ہے،
अब 6th पॉइंट जो है ये भी इंशाल्लाह मैं आज कवर नहीं करूंगी, क्योंकि इसको मुझे आपको वीडियो कॉल पर आना पड़ेगा और आप लोगों को समझाना पड़ेगा इसका क्या रूल है। एक्सेप्शनल रूल है ये, जिसको इमाला कहा जाता है। वो इंशाल्लाह मैं आगे की क्लासेस में आपको जरूर बजरूर वीडियो कॉल पे आकर इसका खुलासा करूंगी। अब फिल वक्त मैं ये जो 6th और 5th 7th पॉइंट है आप लोगों को नहीं पढ़ाने वाली, बस 5th पॉइंट तक हम अपनी क्लास खत्म करेंगे इंशाल्लाह। और 10 मिनट है हमारे पास, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो हैंड रेज करेंगे माइक ओपन किए बगैर, और जो भी हैंड रेज करेगा मैं इंशाल्लाह उनसे सवाल करने का मौका दूंगी और उसका जवाब दूंगी। और एनी डाउट्स रिलेटेड क्लास के हों तो आप वक्त ना मिलने पर मुझे पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। मुबीना से आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकती हैं।